ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس تراویح کے لیے میں نے 20واں پارہ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم انہیں بغیر آزمائی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا ہے، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے داری میں سچے اور پکے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو اپنے ایمانی دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی مومن مرد یا کوئی مومنہ عورت یہ سوچے کہ صرف ہم ایمان لے آئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بغیر آزمائش کے یوں ہی چھوڑ دے گا، یوں ہی ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کامل مومن ہونے کی دلیل ہے، آپ سچے اور پکے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آلام اور اسی طریقے سے غم، ہر چیز کا آنا ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کی زندگی مومنانہ زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈال کر ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پریشانی میں ڈال کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے چیلنجز کو رکھ کے ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرے بندے کے اندر کتنا ایمان پیوست ہے، میرے بندے کے دل کے اندر کتنا ایمان رکھا ہوا ہے، کتنا ایمان راسخ ہے، کتنا ایمان پیوست ہے، کتنا ایمان چھپا ہوا ہے، کتنی پختگی ہے ایمان میں۔ اس کو جانچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کی زندگی میں آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں لاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگرچہ ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے، یعنی یہ آیت نازل کیسے ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کو نازل کیا، تو شان نزول جو ہے اس آیت کا کہ جب عرب میں کفار مکہ کے جانب سے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کے جانب سے مسلمانوں پر، جو بھی اسلام قبول کیے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آ کر شکایت کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعا کیجئے تاکہ ان ظالموں کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد، کوئی سپورٹ آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تشدد، یہ ظلم اور یہ ستم جو ہے، یہ پریشانیاں جو ہیں، یہ مصیبتیں جو ہیں، یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ تو اہل ایمان کی تاریخ ہے، اہل ایمان کی تاریخ ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر دور میں، ہر انبیاء کے دور میں، ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں رسولوں کو بھی آزمایا گیا، نبیوں کو بھی آزمایا گیا، مومنوں کو آزمایا گیا ہے۔ یہ ہمارا دور ہے، ہم بھی اگرچہ مومن ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظلم و ستم کے ذریعے ہمیں بھی آزما رہا ہے، ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پچھلے قوموں میں جو اہل ایمان ہوتے تھے، مومن ہوتے تھے، مومن مرد ہوتے تھے، مومن عورتیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ والے ہوتے تھے، اس قوم کے اس وقت کے جو ظالم بادشاہ ہوتے تھے، ظالم لوگ ہوتے تھے، ظالم حکمراں ہوتے تھے یا شر پسند لوگ ہوتے تھے، ان اللہ والوں کو، ان مومن بندوں کو پکڑ کر لاتے تھے، جکڑتے تھے، ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور گڑھے کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا تھا اور ان کے سر کے اوپر سے بیچوں بیچ آرا چلایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے
उनकी दोनों धड़ यानी उनकी जिस्म आधा आधा तकसीम हो जाती थी। इस तरीके का जुल्म सितम पिछले के दौर के अंबिया के कौमों के ऊपर काफिरों ने, मुशरिकों ने ढाया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तारीख का जिक्र करते हैं कि लोहे की कंघियाँ बनाई जाती, लोहे की कंघियाँ बनाई जाती। कंघी होती है ना, कांटेदार होती है। जिस तरीके से आप देखेंगे कुरैशियों के गली में गोश्त का जो लोथड़ा लटकाया जाता है वो लोहे की कंघी होती है, उसमें गोश्त को लटकाते हैं। उस तरीके की लोहे की कंघी बनाई जाती थी और बनाकर उसको तपाया जाता था, गरम किया जाता था और उन गरम खोलते हुए लोहे की कंघी से मोमिनीन के जिस्म को उधेड़ा जाता था। इस तरीके का जुल्म सितम मोमिनीन पर होता था जो पिछले कौम के अंबिया और रसूल के कौम थे। जो पिछले कौम के अंबिया और रसूल के जो कौम हैं उनके ऊपर इस तरीके का जुल्म सितम ढाया जाता था, लेकिन वहाँ भी उनके ईमान में कुछ कमी नहीं आती थी, उनके ईमान में कोई नक्स नहीं आती थी, उनके ईमान में कोई कमी वाक़ई नहीं होती थी, बल्कि फिर भी वो साबित कदमी के साथ अल्लाह और रसूल की बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियाँ, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हमेशा मोमिन की ज़िंदगी में आती रहेंगी। वहाँ ये है कि हमें अपने ईमान पर साबित कदमी के साथ रहना है, हमें अपने मोमिनाना ज़िंदगी गुजारते हुए चले जाना है। इस दुनिया से हमें कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस के जो तालीमात हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए चले जाना है। सही बुखारी की ये तज़किरा था, ये जो वाक़या मैंने सुनाया है ये सही बुखारी में किताबुल अहादीथुल अंबिया में ये पूरा तज़किरा मौजूद है। इसी तरीके से अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर उनकी ईमान की टेस्टिंग करता है। जिसके दिल में जितना ईमान होता है उसको उतनी ज़्यादा चैलेंजेस, मुसीबतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगरचे आपके दिल में जितने ईमान की पुख्तगी होगी, आप जितने मोमिन बंदे होंगे, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ उतनी आएंगी। आप जितने पक्के सच्चे मोमिन होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी बीमारी के शक्ल में, कभी एक्सीडेंट के शक्ल में, कभी आपके घरों में जो है गुर्बत डाल के, तंगी डाल के, तंगदस्ती की हालत करके, कभी जो बिजनेस में लॉस हो गए, इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन के ईमान को टेस्टिंग करता रहता है। और इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 155 में फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सूरा बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 155 में 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हम 5 चीज़ों के ज़रिए मोमिनों को आजमाएंगे। सबसे पहली चीज़ जिसके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ईमान की टेस्टिंग करता है, मोमिनों के सामने चैलेंज रखता है, मोमिनों को उस प्रॉब्लम को फेस करना होता है, वो है खौफ। खौफ के ज़रिए आजमाता है। कभी जान खो जाने का खौफ, कभी माल खो जाने का खौफ, कभी बिजनेस कम हो जाने का, बिजनेस ठप पड़ जाने का खौफ, यानी कभी दुश्मन का खौफ। आजकल देख ले हिंदुस्तान के हालात या पूरी दुनिया आलमी पैमाने पर मुसलमान किसी ना किसी खौफ के शिकार हैं। कभी बैरूनी मुल्क का खौफ है, ख़तरा है कि पता नहीं मुस्लिम कंट्री के ऊपर कौन सा दूसरा फॉरेन कंट्री वाला दुश्मन कंट्री हमला कर दे, इसका डर है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की हालत हम देखेंगे, हमेशा मुसलमानों को ये फ़िक्र लाहक है, खौफ है कि पता नहीं आने वाले दिनों में हमारा क्या हाल होगा, हमारे जानों के साथ क्या हाल होगा, हमारे मालों के साथ क्या हाल होगा, हमारी प्रॉपर्टी के साथ क्या हाल होगा, हमारी ज़मीनें कहीं जब्त ना कर ली जाएं। क्योंकि NRC के बारे में, CA के बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ आते रहते हैं और हम जो हैं डर और खौफ का शिकार होते रहते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला NRC की बातें, CA के बातें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसकी बातें करके, या नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप NRC की बातें करके, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए अफवाहें फैलती हैं, इसके ज़रिए जो हमारे अंदर डर और खौफ घुसता है, इसके ज़रिए हमारे ईमान की टेस्टिंग हो रहा है। वाकई जो सच्चे पक्के मोमिन होते हैं इस वक्त में सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, और इस वक्त ऐसे हालात में वो अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, ऐसे हालात में अल्लाह के करीब होते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ये जो मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स जिसमें तुम घिरे हुए हो, फंसे हुए हो, ये तुम्हारे गुनाहों के करतूत का नतीजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजमाता है, कभी हमारे ईमान की टेस्टिंग करना चाहता है और कभी हमारे गुनाहों की वजह से हम पर ऐसे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देता है।
تو آپ دیکھیں گے یہ خوف کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ کرتا ہے. حلال کمائی کھاتے ہیں لیکن دیکھیں گے خوف ہے, حلال کمائی میں برکت نظر نہیں آتا. حالانکہ برکت ہوتی ہے لیکن لوگوں کو یہ جو شیطان ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے کہ حلال کمائی کھائے گا تو اس میں پروفٹ نظر نہیں آئے گی, تو حرام کمائی کھا کے دیکھ, انٹرسٹ لے کے دیکھ, بزنس لون لے کے دیکھ, اس کے بعد دیکھ تیرے بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے, اور وقتی طور پر پروفٹ ہوتا بھی ہے, نظر بھی آتا ہے, لیکن وہ حلال بزنس نہیں حرام بزنس ہوتا ہے. یہاں یہ خوف, یہ شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے ہمارے دل میں کہ حلال کمائی کمائے گا تو اس طریقے سے تنگی کی زندگی گزرے گی تیری, اس طریقے سے بھوکے پیاسے کی زندگی گزرے گی, تم اپنے بچوں کو اچھے اسکولز میں نہیں پڑھا پاؤ گے, اچھے ایجوکیشن نہیں دے پاؤ گے. اس طریقے کے وسوسے ڈال کے شیطان جو ہے حرام کمائی کے پیچھے لے جاتا ہے, حرام بزنس کی طرف لے جاتا ہے. یہاں کیا خوف ہے ہمیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, میرا کیا حال ہوگا, میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہوئے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتے. یہی ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہے. وہاں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ تم حلال کمائی کھاؤ گے تو تنگ دستی میں رہو گے, تمہیں اگرچہ لگزریس لائف گزارنا ہے تو تھوڑا بزنس لون لے کے دیکھو, انٹرسٹ پر بزنس کر کے دیکھو, شیئر مارکیٹنگ میں جا کے انویسٹ کر کے دیکھو. اس طریقے سے حلال کمائی کی طرف جب ہمیں لے جاتا ہے, وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے, اس وقت جو مومن بندہ ہوتا ہے یہاں ہمارے ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. وہ چاہے تھوڑا ہی کمائے, تنگ دستی کی زندگی گزارے, غربت کی زندگی گزارے, لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتا, ایمان میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے. کبھی کبھی پورے قوم کے اوپر بھوک مری کو مسلط کر دیتا ہے, یعنی صحیح سے بارشیں نازل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اناج اور غلے نہیں اگتے ہیں. ایگریکلچرل فیلڈ پورے جو ہے ڈراٹس آ جاتی ہیں, سوکھ جاتی ہیں, صحیح سے اناج نہیں اگتے, صحیح سے غلے نہیں اگتے, یعنی بھوک مری میں پورے قوم کو رکھ دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنگ دستی غربت اتنی آ جاتی ہے کہ 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل ملنا ہو جاتا ہے. اس طریقے سے بھوک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں آزماتا ہے. اسی طریقے سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومنین کو وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ مال میں کمی کر کے آزماتا ہے. یعنی اچھے خاصے بزنس کرتے رہتے ہیں, اچانک مال میں دیکھیں گے لاس آ جاتا ہے, اچانک پوری کی پوری بزنس لاس ہو جاتی ہے. کہیں ہم بزنس ڈیل ہوئی تھی, آج بزنس ڈیل ہوئی تھی, آئندہ نیکسٹ ویک میں بزنس میں پروفٹ ہونے والی تھی, اچانک دیکھتے ہیں کہ جو ڈیلر ہوتا ہے وہ دھوکہ دے دیتا ہے. اس طریقے کا مال جو پروفٹ ہونے والا تھا اچانک پورے کا پورا مال جو ہے لاس ہو جاتا ہے. یعنی اچانک جو ہے ہماری زندگی میں تنگی آ جاتی ہے, ہماری زندگی میں مال کا خوف آ جاتا ہے, مال کی تنگی آ جاتی ہے, مال کے مالیاتی طور پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں ہمارے ایمان کا ٹیسٹنگ ہوتا ہے, یہاں ہمارے صبر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, صبر کی آزمائش ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو آزمانا چاہتا ہے. اور ایک والانفس, یعنی دیکھیں گے ایک ہی سال میں ہمارے زندگی میں ہمارے رشتہ داروں میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. کئی لوگ, باپ بھی اسی سال مر گیا, بیٹا بھی مر گیا, بھائی بھی مر گیا, ماں بھی مر جاتی ہے. اس طریقے سے ایک ہی گھر میں اگرچہ 5-6 لوگ رہتے ہیں, 3-4 لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے. اس طریقے سے لوگوں کو دنیا سے لے چلے جاتا ہے. زیادہ تر اموات ہمارے رشتہ داروں میں ہوتی رہتی ہے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں پہ انسان جو ہے غم کھاتا ہے, لیکن یہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہاں صبر کرنا چاہیے. یہاں بھی ہماری ایمان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مومن کو اور ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے, والثمرات, پھلوں میں کمی کر دیتا ہے. اناج صحیح سے نہیں اگتے ہیں, یا اناج کٹنے والی ہوتی ہے, فصل کٹنے والی ہوتی ہے, اچانک سائیکلون آ جاتا ہے, اچانک کوئی طوفانی بارش آ جاتی ہے, پوری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے بھوک مری کے شکار ہو جاتے ہیں, پورے معاشرہ میں تنگ دستی آ جاتی ہے, غربت آ جاتی ہے. اس کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو آزماتا ہے. ایسے حالات میں مومن کریں گے کیا, مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں سب سے پہلے ہمیں صبر کی زندگی گزارنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. دیکھیے صبر کب آئے گا؟ پہلے تو ہمیں تقدیر پر ایمان ہو, کیونکہ ایمان کے رکن میں, ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں, ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں جو چیز لکھ دیا ہے اس پر ایمان
ईमान लाना है कि ये तो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की रजामंदी है इसमें। और तकदीर की दो किस्में हैं, अच्छी तकदीर होती हैं, बुरी तकदीर होती हैं। जब हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुक़द्दर में, हमारे नसीब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अच्छी तकदीर लिख देता है, खुशहाल ज़िंदगी जब हम गुजारते हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगरचे हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रजामंदी से, अपनी मशीयत से बुरी तकदीर लिख देता है, यानी हमेशा मुसीबत में घिरे होते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमेशा टेंशन्स में होते हैं, हमेशा देखेंगे हर चीज़ में जो है लॉस ही लॉस जाता है, हमेशा परेशानी में मुब्तला रहते हैं, ये हमारी बुरी तकदीर है। इस पर भी ईमान लाना है कि इसमें भी अल्लाह की रजामंदी शामिल है, बगैर अल्लाह की रजामंदी के कुछ नहीं होती, इसमें भी अल्लाह की मशीयत शामिल है। अल्लाह चाहता है कि मेरी ज़िंदगी तंगी के साथ गुजरे, अल्लाह चाहता है कि मैं प्रॉब्लम्स में रहूं, अल्लाह चाहता है कि मैं चैलेंजेस को फेस करते हुए ज़िंदगी गुजारूं। इस तरीके से जब पॉजिटिव माइंडेड के साथ हम ज़िंदगी गुजारेंगे, पॉजिटिव लाइफ गुजारेंगे, मुस्बताना ज़िंदगी गुजारेंगे, मुस्बत लाइफ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो खुशगवार ज़िंदगी होती और मायूसी का कभी शिकार नहीं होंगे। अगरचे हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइश को हम फेस करते हैं, चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, अचानक कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है, कैंसर आ गया, फला बड़े बड़े बीमारियां आ जाती हैं, उस वक्त हमें सब्र से काम लेना चाहिए और सोचना चाहिए ये जो बीमारी आई है ये या तो मेरे गुनाह का नतीजा होगा, या तो इस गुनाह के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे कोई, यानी इस बीमारी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे कोई गुनाह को माफ़ करना चाहता होगा, या तो इस बीमारी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ईमान की टेस्टिंग करना है, मेरी ईमान की टेस्टिंग कर रहा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे कैंसर दे दिया है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है इस कैंसर के ज़रिए मेरे गुनाहों की माफ़ी कर रहा है, मेरे गुनाह को माफ़ कर रहा है, मेरी बख्शिश कर रहा है, या तो इस कैंसर के ज़रिए मेरे ईमान की टेस्टिंग करना चाहता है। इस तरीके से जब हम पॉजिटिव लाइफ, मुस्बत सोच के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम गमगीन नहीं होते, कभी मायूस नहीं होते हैं। और ऐसे हालात में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजमाता है, परेशानियों में डालता है, कभी बीमारी के शक्ल में, कभी मुसीबतों के शक्ल में, कभी हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, ऐसे हालत में एक मोमिन का किरदार ये होता है कि सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बक़रा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 156 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब मोमिनों पे मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइशों में घिरा हुआ होता है, तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो मुसीबत आई है ये भी अल्लाह के जानिब से है और यकीनन एक ना एक दिन मुझे मौत आएगी और मैं भी अल्लाह के जानिब लौटने वाला हूँ। इस ईमान के साथ, तकदीर पर भरोसा करते हुए, तकदीर पर पुख्तगी के साथ ईमान रखते हुए जब मोमिन बंदा ज़िंदगी गुजारता है तो आजमाइशों के हालत में, मुसीबतों के हालत में, परेशानियों के हालत में सब्र करते हुए दीन पर इस्तिकामत के साथ, इस्तिकामत दीन के साथ, साबित कदमी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और ऐसे मुसीबतों के हालात में जब हम अच्छे सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुहुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि जो मुसीबतें हैं और परेशानियां आती हैं और मेरा बंदा सब्र करता है और अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की तदबीर पर रजामंद हो जाता है, सब्र करते हुए दीन पर इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारता है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो उन पर अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही लोगों को सिराते मुस्तकीम पर जमा के रखता है। पता चला कि मुसीबत, परेशानियाँ, आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस जो भी हम फेस कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुसीबतें देकर, परेशानियाँ देकर हमारे ईमान की टेस्टिंग कर रहा है। और जब ईमान की टेस्टिंग करता है, सब्र के साथ जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इस्तिकामत दीन के साथ, दीन के ऊपर साबित कदमी के साथ, इस्लामी शरीयत आलिमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें हम पर नाजिल करता है और हमें सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाता है। अगरचे हम सीरत का मुताला करते हैं, तो अगरचे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, तो कोई ना कोई साल में आपकी ज़िंदगी में देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा का ज़रूर आजमाया है, उनके ईमान की टेस्टिंग ज़रूर की है। शेब अबी तालिब का वाक़या है, यानी अबी तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके घाटी का वाक़या है। जब इस्लाम फैलने लगा,
इस्लाम आम होने लगा, लोग इस्लाम को कबूल करने लगे, और जो है 40-50 लोग मुसलमान, 70 के करीब 80 के करीब मुसलमान होने लगे। तो कुफ़ार और मुशरिकीन ने ये किया कि तमाम नौ मुस्लिमों जितने भी सहाबा थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान समेत सोशल बाइकाट कर दिया, समाजी बाइकाट कर दिया, उनसे रिश्तेदारी ख़त्म कर ली, उनसे लेन देन ख़त्म कर लिया गया, उनसे मामलात ख़त्म कर लिया गया। दुनियावी मामलात, राशन लेना, राशन को देना, पैसों के मामलात, दुनियावी मामलात जितने होते हैं तमाम के तमाम मामलात उनसे ख़त्म कर ली गई और उनको समाजी बाइकाट कर दिया गया, सोशल बाइकाट हो गए। और इस तरीके से उस वक्त चचा अबू तालिब जो थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, गैर मुस्लिम थे लेकिन नबी के हक़ में हमदर्द थे, सहाबा के हक़ में हमदर्द थे। उन्होंने अपनी घाटी यानी पहाड़ के नीचे जो है, नीचे का जो एरिया होता है उनकी ज़मीनें थी, उस ज़मीन में इन्होंने कहा कि ठीक है मेरी घाटी की एक ज़मीन है पहाड़ के दरमियाने हिस्से में, वहाँ जाके उसमें ज़िंदगी गुजार लो। तो जब समाजी बाइकाट कर दिया गया था सहाबा को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत उनके ख़ानदान के लोग समेत सारे लोग उस घाटी में जाके ज़िंदगी बसर करने लगे। ये कितने साल था? ये डिटेंशन सेंटर की तरह था, जिस तरीके से आज देखेंगे आप रेफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं, कहीं वार होता है, जंगें होती हैं, फ़लस्तीन की जो हालात हैं इस तरीके से, यानी पूरी तरीके से उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया जाता है, सोशल बाइकाट कर दिया जाता है। या आसाम के हालात आप देखेंगे, इससे पहले जो एनआरसी हुआ था, सीए अप्लाई करने की जो वो लोग मंशा बनाए थे, उन्होंने चाहा था तो उन्होंने उससे पहले कहा था कि रेफ्यूजी कैंप या डिटेंशन सेंटर कायम करेंगे और जिनके ऊपर भी हमें शक होता है कि आदमी जो है बाहर से आया हुआ है, बांग्लादेश से आया हुआ है, इनको डिटेंशन सेंटर कैंप में रखा जाएगा, यानी समाजी बाइकाट इसको कर देंगे, ये इंडिया का शहरी, इंडिया का सिटीजनशिप नहीं होगी इसकी। इस तरीके की बातें गवर्नमेंट ने की थी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का ने उनका सोशल बाइकाट किया था। और ये जो शेब अबी तालिब है, ये डिटेंशन सेंटर के काम की तरीके से उस वक्त था, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा लोग वहाँ पनाह ली थी। 2.5 साल से 3 साल उन लोगों को खाना भी नहीं, पीना भी नहीं और दुनियावी मामलात उनसे बाइकाट कर रखे थे। अगर चोरी छुपे रात में कोई रिश्तेदारी के बलबूते पर हमदर्दी खाकर खाना तोशा लेकर जाता था, उनको भी रास्ते में गैर मुस्लिम पकड़ के मारते थे और तोशा नहीं ले जाया करते। खाने सही से नहीं मिलते थे, पानी सही से नहीं मिलता था। सहाबा वो जो घाटी थी, उस घाटी के जो झाड़ियाँ थी उसके पत्ते खाकर ज़िंदगी गुजारते थे। और जो सहाबियात थी, सही से खाना ना मिलने की वजह से जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ये सहाबियात के छाती में दूध ना बनने की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे दूध की ना मिलने की वजह से बिलक बिलक कर रोते थे। सही से खाना नहीं, सही से पीना नहीं। ये किन की हालत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हालत है। सहाबा के ऊपर इतने जुल्म सितम ढाए गए, समाजी बाइकाट किया गया, फिर भी क्या वो दीन से दूर हो गए? क्या उन्होंने कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का से कॉम्प्रोमाइज़ कर ली? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, बल्कि दीन पर साबित कदमी के साथ ज़िंदगी गुजारा, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, अपने जान को गंवाना तैयार कर लिया, अपने जान को खो देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कभी दीन के सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगरचे आज भी ये हालात हमारे सामने आते हैं, ऐसे हालात अगरचे हमारे सामने आते हैं, तो हमें भी सीरत का मुताला करते हुए इसी तरीके से साबित कदमी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी शरीयत पर साबित कदमी, ठोस ईमान की दलील हमें सबूत पेश करना होगा। इस तरीके के हालात हमारे सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें देखने को मिलते हैं। अब आजमाइश में क्या करेंगे हम? आजमाइश तो आ गई, मुसीबतें आ गई, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे ज़िंदगी में, टेंशन्स क्रिएट होते हैं, क्रिटिकल कंडीशंस आते हैं, तो ऐसे हालात में करेंगे क्या? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मोमिनो, जब तुम्हें आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं और तुम चाहते हो कि मुझे कोई मददगार मिले, मेरा कोई सपोर्टर हो, तो मैं तुम्हारा सपोर्टर बनूंगा, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा सपोर्ट ज़रूर करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करो, शर्त यह है कि दुआओं का एहतमाम करो। नमाज की पाबंदी के ज़रिए और दुआओं के एहतमाम के ज़रिए ही जब मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, अल्लाह की सपोर्ट मिल सकती है। अल्लाह हमारा नासिर व हामी बन सकता है, अल्लाह हमारा मददगार बन सकता है। कब?
शर्त, दो कंडीशन है। एक तो मोमिनाना ज़िंदगी गुजारना है, इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, नमाज की पाबंदी करना है और दुआओं का अहतमाम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनकी सीरत से हमें ये बात मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी वो घबराहट महसूस करते थे, जब भी बेचैनी महसूस करते थे, जब भी टेंशन क्रिएट होता था, जब भी फसादात होते थे, जब भी फितने होते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में, ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में, चैलेंजेस को फेस करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते थे और दुआ का अहतमाम करते थे। ये सुन्नत आज हमारे ज़िंदगी में नहीं। मुसीबत आती हैं, परेशानियां आती हैं, घबराहट की ज़िंदगी तो हम गुजार लेते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। ये नबी की सुन्नत हमारी ज़िंदगी में नहीं है। फ़ौरन कोई हादसा हो गया, फ़ौरन कोई एक्सीडेंट हो गया, फ़ौरन पूरी बिजनेस लॉस हो गई, हम नमाज का अहतमाम नहीं करते हैं, दुआओं का अहतमाम नहीं। अल्लाह की मदद कैसे आएगी, अल्लाह की नुसरत कैसे आएगी, अल्लाह हमारा मददगार कैसे बनेगा, अल्लाह हमारा सपोर्टर कैसे बनेगा? अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारा सपोर्टर रहूँगा, शर्त यह है कि तुम मोमिन रहो और नमाज की पाबंदी करो और दुआओं का अहतमाम करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा, तुम्हारे पुकार को ज़रूर सुनूंगा। हम कहाँ पुकारते हैं? फ़लस्तीनों पर इतना जुल्म हो रहा है, गज़ा के ऊपर इतने जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, इजराइल वाले इतने जुल्म और सितम ढा रहे हैं। हम फ़लस्तीन की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन रात में तहज्जुद की नमाज में उठ के नमाज का क़याम करके हम उनके हक़ में दुआ भी नहीं करते। कैसे उनकी मदद आएगी? फ़लस्तीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हामी नासिर कब बनेगा? जब हम मोमिन बंदे उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करके कम से कम उनके लिए, हम तो वार वेपन्स नहीं भेज सकते, वार के वेपन्स नहीं भेज सकते, माली तौर भी उनका ताउन हम नहीं कर सकते, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। एक सपोर्ट कर सकते हैं और वो अहम सपोर्ट है, वो क्या है? मेन सपोर्ट है। अल्लाह की मदद आएगी उनके लिए कब? दुआओं का अहतमाम तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं तो दुआ कहाँ से आएगा? नमाज की पाबंदी होती है तो दुआ की पाबंदी होती है। हम नमाज से दूर हैं तो दुआ की पाबंदी कैसे होगी? जब तक हमारी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी ना हो, दुआओं का अहतमाम नहीं हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान का महीना आखिरी अशरा है, वो भी ख़ास कर इस आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में जब हम क़ियामुल लैल करते हैं, रात जागते हैं, खुसूसी दुआओं का अहतमाम करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से दुआओं का अहतमाम करते हैं, अल्लाह से मुनाजात करते हैं, तो उस वक्त कम से कम अपने फ़लस्तीन भाइयों और बहनों को याद रखें। उनके ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी सितम हो रहा है, उसके लिए अल्लाह से मदद मांगे, सपोर्ट मांगे। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा आपकी दुआओं को, लेकिन क्या है? खालिस दिल से, खुलूस नियत के साथ मांगना है, दर्दमंदी के साथ मांगना है, हमदर्दी के साथ मांगना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू ही हामी और नासिर है, तेरे सिवा फिल वक्त फ़लस्तीन वालों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं और गज़ा के वालों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता, इनकी सपोर्ट, इनका सपोर्टर कोई नहीं है, तू ही सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से, तो उनका सपोर्ट कर। इस तरीके से हमें दुआ का अहतमाम करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ देता है, मुसीबतें नाजिल करता है, आजमाइशें में हमें घिरा के रखता है, उस वक्त हमें इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए, साबित कदमी के साथ, इस्लामी शरीयत के पाबंद होते हुए, हमें दीन पर साबित कदमी के साथ नमाज की पाबंदी करते हुए, दुआओं का अहतमाम करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये ताक़रात है, ताक़रातों में जो भी दुरूस होते हैं उसको बगौर समात फरमाएँ। उसके बाद असल जो काम है इस ताक़रात में इनफिरादी इबादत है, यानी पर्सनली इबादत ज़्यादा करना, अकेला अकेला डिवाइड होके पर्सनल तौर पर इबादत ज़्यादा करना है। दुआओं का अहतमाम करें, कलाम पाक का अहतमाम करें, तिलावत कलाम पाक यानी कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें। अगरचे आप पढ़ना नहीं जानते हैं, कम से कम जो पढ़ रहे हैं ज़ोर से, उनके पास, उनके बाजू में बैठ के जाके तिलावत सुने। क़ियामुल लैल का अहतमाम करें, नवाफिल का अहतमाम करें, दुआ का अहतमाम करें, और ख़ास कर ये रात में अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये आखिरी अशरे में ज़्यादातर कसरत के साथ पढ़ने वाली दुआ है। कम से कम इस दुआ का अहतमाम, इस दुआ का विर्द तो हमें करते रहना चाहिए। इनफिरादी इबादत है, ज़्यादातर पर्सनली तौर पर इबादत करने की रात है, ज़्यादा से ज़्यादा इनफिरादी इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफिल का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, और इस तरीके से ख़ुद अपने लिए भी
دعا کریں, اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں, اپنے فیملی ممبرس کے لیے بھی دعا کریں, خاص کر فلسطین اور غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے ضرور دعا کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات میں اور آخری عشرے سے زیادہ فائدہ حاصل